اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. نیب اور وفاق کو نوٹس. عدالت کا نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے والے افسران کی شہادت قلم بند کرنے کا فیصلہ. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. نواز شریف کو پتا ہے وہ ملک کے نظام کو شکست دے کر باہر گیا. ہزاروں کیس التوا میں ہیں. یہاں نواز شریف کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں. نواز شریف وہاں بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ پورا سسٹم کچھ نہیں کر پا رہا. توشہ ریفرنس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست. نواز شریف نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا. شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پہلی تفتیشی رپورٹ جاری. 1998 میں اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 48 لاکھ روپے تھی. 2018 میں اثاثوں کی مالیت 7 ارب 32 کروڑ تک پہنچ گئی. رپورٹ میں انکشاف. کرپشن اور NRO اس کے علاوہ ہر قسم کی جفی لگانے کو تیار ہے. اپوزیشن کو سر پہ بٹھائیں گے, پلکوں پہ سجائیں گے, کندھے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, لیکن NRO نہیں دیں گے اور کرپشن پہ کمپرومائز. نون لیگ باہر چلی گئی, شین اندر ہو گئی. میم لیگ اب کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ کرپشن اور بددیانتی پر جب بھی ہاتھ ڈالو کہتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ خطرے میں ہے. یہاں پر کبھی کس کو گھسیٹتے ہیں, کبھی کس کو گھسیٹتے ہیں. یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ نیب چلا رہے, یہ ملک چلا رہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا مطلب نیب کو پتا ہے نہ ہی وزراء کو. جو سرکاری افسر ایمانداری سے ریٹائرڈ ہو گیا اسے نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے. MD منزل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم کا بیان ریکارڈ کر لیا. سندھ میں کورونا کیسز بڑھنے پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز. NCOC اجلاس میں کراچی میں کیسز بڑھنے پر تشویش. 747 نئے کیسز میں 365 صرف کراچی سے سامنے آئے. سیکرٹری صحت سندھ کی بریفنگ. ملک کے تعلیمی اداروں میں پرائمری کلاسز کا پہلا روز. وزیر تعلیم سندھ اور پنجاب کے مختلف اسکولوں کے دورے. کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. انتظامیہ کو کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. حکومت نے پھر عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فائدے سے محروم کر دیا. اوگرا کی 2 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش مسترد. لیویز ٹیکس بڑھا کر قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا گیا. سندھ کابینہ کا RLNG گیس استعمال کرنے سے انکار. صوبے سے نکلنے والی قدرتی گیس دینے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کی منظوری. گورنر راج نہیں لگ رہا. سندھ حکومت بے خوف کام کرے. اپوزیشن اپنی چوری بچانے کے لیے بابیلا کر رہی ہے. گورنر عمران اسماعیل کا تقریب سے خطاب. تحریک انصاف نے بیان بازی پر اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سے استعفیٰ طلب کر لیا. APC میں شامل جماعتیں بھی متحرک. اپوزیشن جماعتوں کا 2 اکتوبر کو ویڈیو لنک اجلاس طلب. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی عہدیداران کا فیصلہ کیا جائے گا. اپوزیشن کرپشن بچاؤ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے. ترقی کے سفر میں رکاوٹیں ڈالنے والے عوام کے خیر خواہ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو.
फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान के रिमांड में 5 रोज की तौसीह। एहतसाब अदालत पेशावर का नैब को 5 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक लीगी एमपीए चौधरी रियाज पर आमदन से जायद असासजात बनाने का जुर्म साबित। अदालत का लीगी रहनुमा को 10 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। कराची में ताजिर उल्मास के अगवा में पुलिस ही मुलव्विस निकली। अगवा में मुलव्विस इंस्पेक्टर अशरफ आवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। सफाक बेटे ही बाप के कातिल निकले। 2 भाइयों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। पीटीआई के सूबाई डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह खान पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज, ओहदे से मुस्ताफी, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। भारत में इंसाफ का कत्ल। बाबरी मस्जिद केस का 28 साल बाद हिंदू इंतहा पसंदों के हक में फैसला सुना दिया गया। लखनऊ हाईकोर्ट ने बीजेपी के एलके अडवाणी और मनोहर जोशी समेत 32 इंतहा पसंद बरी कर दिए। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना है कि भारत को 11 पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब देना होगा। इंसाफ के हुसूल के लिए हर फोरम पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। एफपीआर की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नई हिकमत अमली। कंपनियों, प्रॉपर्टीज एजेंसीज, यूजर्स को शनाख्ती कार्ड, रसीदें, कारोबार की तफसीलात देना होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टील मिल मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक की मंजूरी दे दी। नॉन पिटिशंस मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के लिए 11.6 अरब रुपए मंजूर। हुकूमत ने अफगान बाशिंदों की वीजा पॉलिसी तब्दील कर दी। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाना जाने की बजाय सरहद पर वीजा मिलेगा। 5 साल के लिए बिजनेस वीजा भी मिल सकेगा। तुर्कम बॉर्डर पर मरीजों को 6 माह तक का वीजा दिया जाएगा। 14 दिन में सिर्फ एक उम्रे की इजाजत होगी। सऊदी हुकूमत ने दूसरे उम्रे के लिए 14 रोज का वक्फा लाजमी करार दे दिया। ट्रंप और जो बाइडेन में पहला सदारती मुबाहिसा बदनज़मी और तकरार की नस्ल। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम हदें पार कर दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में सरहदी कशीदगी कम न हुई। झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। σε θέση βολής και τώρα ο Ρατζέλοβιτς η μπάλα out. Θα κρύψει το Σενέ, το σούτ, η κόντρα, ο Φαμπιάνο πάλι. यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। दूसरे प्लेऑफ में यूक्रेन ने बेल्जियम को हरा दिया। बाकी 2 मैचेस बेनतीजा रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम सिक्स न्यूज के साथ में हूं एतजाज नकीब और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیے کہ مجرم کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ پورے نظام کو شکست دے کر گیا، وہاں بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ پورا سسٹم کچھ نہیں کر پا رہا۔ سارا سسٹم شامل ہے، سفارت خانے، ادارے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیے کہ مجرم کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ پورے نظام کو شکست دے کر گیا، وہاں بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ پورا سسٹم کچھ نہیں کر پا رہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک دفعہ پھر وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ وارنٹس کی تعمیل کے لیے دوبارہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس گیا، تاہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر موجود شخص نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے سخت ریمارکس میں کہا کہ ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گیا اور لندن بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستا ہوگا۔ کل نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں، ان کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیق ہے۔ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس ایک کیس کی وجہ سے باقی کیس التوا کا شکار ہیں، ہزاروں کیس التوا ہیں اور یہاں اس کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ عدالت، حکومت، دفتر خارجہ اور ہائی کمیشن مل کر ایک وارنٹ کی تعمیل کرا رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مجرم کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ لندن میں موجود قونصل اتاشی کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف نے لندن جا کر علاج کرایا، نہ میڈیکل رپورٹس بھجوائیں۔ نواز شریف کی اپیل عدالت نے مسترد کی ہے، حکومت نے نہیں۔ جب نواز شریف کو سزا ملی یا نااہل ہوئے تو ہماری حکومت نہیں تھی۔ تو میں یہ نامہ لیکس آئی تھی اور ہماری حکومت تو نہیں تھی، آپ کی اپنی حکومت تھی، اور جب آپ ڈسکوالیفائی ہیں تو آپ کو اس کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا جو آپ کی حکومت میں تھی۔ آپ کا کیا ہم جا کے انفلوئنس کر رہے تھے اس کے اوپر؟ آپ کو اگر نیب نے پکڑا تو آپ کی اپنی بنائی بھی نیب تھی۔ تو میں یہ دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آ کے نا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں، آ کے لوگوں کی آگے اور آ کے وہ سمپتھی ووٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پہ بڑا، اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے۔ وہ کس چیز کو ظلم کر رہی ہے؟ نیب وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر شدید تنقید، بولے نون لیگ باہر چلی گئی، شین لیگ اندر ہو گئی، صرف میم لیگ رہ گئی جو اب کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ پہاڑ پر چڑھیں، کھمبے پر چڑھیں یا UNO میں چلے جائیں، عمران خان NRO نہیں دے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی آصف زرداری کا نام جمہوریت رکھ دیا، جب کرپشن کی بات کرے انہیں جمہوریت یاد آتی ہے۔ تو یہ چلیں گے آئین اور قانون کے اداروں، قانون کے دائرے کے اندر، پھر تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، جمہوریت کے اندر جناب چڑھیں۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ چی کریں یا پی کریں، یہ احتجاج کریں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یہ UNO کے پاس جائیں، یہ دنیا کے کسی فورم پہ چلے جائیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کو NRO نہیں دے گا۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نیب کی جانب سے ابتدائی تفتیشی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 1998 میں شہباز خاندان کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ جبکہ 2018 میں 7 ارب تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نیب نے پہلی تفتیشی رپورٹ جاری کر دی۔ شہباز شریف خاندان کے اثاثے 1998 میں 1 کروڑ 48 لاکھ روپے تھے جو 2018 میں بڑھ کر 7 ارب 32 کروڑ روپے تک جا پہنچے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نیب کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق 1998 میں شہباز شریف، سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 48 لاکھ روپے تھی جبکہ 2018 میں شہباز شریف اور ان کے بے نامی اداروں کے اثاثوں کی مالیت 7 ارب 32 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین نثار احمد اور علی احمد کے خلاف بھی شواہد موصول ہو چکے ہیں۔ نثار احمد اور علی احمد خان کا کانٹریکٹ ہر سال رینیو ہوتا رہا۔ دونوں ملازمین کو جعلی غیر ملکی ترسیلات کی
मद में 15 करोड़ 30 लाख रुपए मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि 15 करोड़ 30 लाख रुपए से बेनामी कंपनियां गुड नेचर और यूनिटास बनाई गईं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 88 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। बेनामी कंपनियों को देखने वाला एक फ्रंटमैन अली अहमद खान इश्तहारी भी हो चुका है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली के खिलाफ तहकीकात की गई। अब तक इन अफराद के खिलाफ 1 अरब 59 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ जाली कर्जों की मद में भी 1010 मिलियन रुपए के शवाहिद सामने आए। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि शहबाज शरीफ से बेनामी कंपनियों और बेनामी असासों से मुतालिक मजीद तफ्तीश दरकार है कि इन कंपनियों को बनाने के लिए सरमायाकारी कहां से आई। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। शाहिद खाकान अब्बासी ने एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैनाती केस में नैब को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है और जब तक नैब है इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तलबी पर नैब रावलपिंडी में पेश हुए। नैब की तहकीकाती टीम ने बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालनामा देने का इसरार करते हुए तहरीरी जवाब देने का मौक़िफ़ अपनाया। पेशी से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में नैब कार्रवाइयों को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। बोले 6 साल कबल MD लगाया, अब कहते हैं गलत है। ट्रायल के दौरान शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। ये सब सियासी इंतकाम का सिलसिला है जिससे मकसद सियासतदानों को बेइज्जत करना है। चेयरमैन नैब के अलावा तमाम तैनाती गलत हैं तो वो केस भी बनाए कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपको मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, गुजरा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैं कहा हम इसके लिए तैयार हैं। मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत है, सिवाय एक अपॉइंटमेंट की, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूँ वो भी ये केस बना दें। वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि वजारत पेट्रोलियम की हर पोस्ट खाली है। किसी भी पेट्रोलियम कंपनी में MD नहीं बल्कि बोर्ड के लोग बैठे हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्वेटा जलसे से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये झूठे मुकदमे करके हुकूमत नहीं बचा सकते। हुकूमत से निजात तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीसी में शरीक जमातों ने मिलकर जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। उसकी पहली स्टीयरिंग कमेटी का कल इजलास हुआ और हमने ये फैसला किया है कि 11 अक्टूबर से कोयटा के जलसे आम से इस हुकूमत के खिलाफ हम एक एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम पाकिस्तान को इस धांधली के जरिए मुसल्लत हुकूमत से निजात ना दिला दें जिसने मईशत तबाह कर दी, मुल्क बर्बाद कर दिया और कश्मीर का सौदा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ वज़ीर वीडियो लिंक के इजलास में खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन, बताइएगा कितनी देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। इस वक्त अगर बात की जाए तो जो सीनियर क़यादत है वो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में पहुंच चुकी है, जिसमें मरियम नवाज़ हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब वो पहुंच चुकी हैं। एहसन इकबाल यहाँ पहुंच चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर समेत सीनियर क़यादत जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। इजलास सबसे कुछ देर में जो है वो शुरू हो जाएगा और इजलास में जो है वो बाकायदा तौर पे जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो हालात बने हैं उनके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा जो पार्टी का मुस्तकबिल का राय अमल है उस पर मुशावरत होगी और कल जो बाकायदा तौर पे PDM की जानिब से APC की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया, उसके मुतालिक जो है वो भी बहस मुबाहिसा होगा और 11 अक्टूबर से जो एहतजाजी रैलियाँ शुरू की जा रही हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से उनके मुतालिक भी भरपूर शिरकत करने के लिए जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि पार्टी की मुस्तकबिल में जो आइंदा का लाहे अमल होगा उसके हवाले से जो है वो भी बातचीत होगी और इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो नवाज शरीफ हैं वो खिताब करेंगे। कारकुनान जो हैं
रहनुमा जो है वो इस वक्त मौजूद हैं 188 सेक्रेटेरिएट के अंदर। अब से कुछ देर के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें पार्टी की क़यादत जो है वो पार्टी के आइंदा के लाहे अमल के हवाले से जो है वो बातचीत करेगी। और इजराइल का ये कहना है कि इस मुतालिक जो है वो अहम फैसले जो हैं वो भी सामने आएंगे। जो बाकायदा तौर पर करारदाद कल PDM की जानिब से जो है पेश की गई, उसके नुकात जो हैं वो भी तमाम रहनुमाओं को बताया जाएगा और उन पर किस तरह से अमल दरामद करना है उसके हवाले से जो लाए अमल है और खाका है वो बाकायदा तौर पर तश्कील दिया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट लाहौर 188 मॉडल टाउन में जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, कुछ ही देर में इजलास शुरू हो जाएगा और पार्टी आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की जाएगी। ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गैस बहरान पर वजीर आजम समेत वफाकी वज़रा पर तनकीद महंगी पड़ गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर सिंध को अपना इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफे से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। PTI रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज कबल कराची में गैस बहरान पर अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी और साथ ही वजीर आजम इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। फिरदौस शमीम नकवी ने अपने बयान पर ट्वीट के जरिए माजरत भी की थी, लेकिन PTI की मरकजी क़यादत ने फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे की तस्दीक की है। इमरान इस्माइल का कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा उसी रोज माजरत करने के बाद दे दिया था। ताहम इस हवाले से अभी वज़ीर आज़म ने कोई फैसला नहीं किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी ने इखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा मुझे दिया है। ECC ने गैस मीटर्स का रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास हुआ। स्टील मिल मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक से जी कामरान। जी, काबीना की इक़्तिसादी राहत मिलने का इजलास सबसे पहले कदर खत्म हुआ है और इजलास में जो है वो स्टील मिल मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक प्लान की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। गोल्डन हैंडशेक के लिए 1965 करोड़ रुपए का जो फंड है वो भी मंजूर कर लिया गया है। स्टील मिल के 49% मुलाजमीन जो है वो गोल्डन हैंडशेक का फायदा उठा सकेंगे। नॉन प्रैक्टिशनर मुलाजमीन को वाजबात की अदायगी के लिए 11 अरब रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है इक़्तिसादी राहत कमेटी की जानिब से। इसके साथ साथ वज़ारत तवानाई की जुमरी पर जो है वो इक़्तिसादी राहत कमेटी ने गैस का रेंट जो है वो 20 से बढ़ाकर 40 रुपए करने की मंजूरी भी दे दी है। CIDC के एक तिहाई वाजबात को करने का फैसला भी किया गया है। वाजबात 22 अरब रुपए जो है वो वसूल किए जाएंगे। काबीना की इक़्तिसादी राहत कमेटी का फैसला मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत हुआ था, जिसमें ये इस्तेमाल करते गए हैं। शुक्रिया कामरान चौधरी। हुकूमत ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजावीज मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। वफाकी हुकूमत ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजावीज मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानब से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल न करने का फैसला किया गया है। मट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में भी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। हुकूमत की जानब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 की कमी की गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से 2 तजावीज हुकूमत को भिजवाई थी। ओगरा की जानब से हुकूमत को भिजवाई गई तजावीज में कहा गया था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4% फी लीटर कमी की जाए। ओगरा ने सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाकर कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2 फी लीटर तक कमी की तजवीज दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया गया और वज़ारत खजाना की जानब से नई कीमतों से मुतल्लिक हतमी ऐलान भी कर दिया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत में इंसाफ का कत्ल, भारतीय खुसूसी अदालत का मुतनाज़ा फैसला आ गया। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला इंतहा पसंदों के हक में दे दिया गया। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बीजेपी के शरीक बानी LK अडवाणी और मुनव्वर जोशी समेत 6 मुल्जिमान पेश तक न हुए। अपनी अदालत अपना फैसला, भारत में इंसाफ का खून हो गया। लखनऊ की अदालत ने 28 बरस बाद बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला इंतहा पसंदों के हक में सुना दिया। फैसले में बाबरी मस्जिद के नदाम में मुलव्वस तमाम 32 मुलजमान को बरी कर दिया गया। मुकदमे के मुलजमान में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के शरीक बानी
اور سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، سابق مرکزی وزراء مرلی منوہر جوشی سمیت کئی سینئر سیاستدان شامل ہیں۔ مقدمے میں لاکھوں انتہا پسندوں پر سنگین الزامات تھے۔ ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کے 2 مقدمے عدالت میں زیر سماعت تھے۔ ایک مقدمہ زمین کی ملکیت کا، دوسرا بابری مسجد کے نظام کا تھا۔ گزشتہ سال بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں پر مندر بنانے کا حکم جاری کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ پاکستان کی بابری مسجد شہید کرنے کے ذمہ داروں کی رہائی کی مذمت۔ پاکستان بھارتی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ثابت ہو گیا کہ ہندوتوا سے متاثر بھارتی عدلیہ انصاف کرنے میں ناکام ہو گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق بابری مسجد شہید کرنے کے نتیجے میں بی جے پی کی زیر قیادت فرقہ وارانہ تشدد ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اون شیرازی سے۔ جی اون شیرازی۔ ہاں جی، دیکھیں بالکل بابری مسجد کو شہید کرنے میں جو افراد ملوث تھے ان 32 افراد کو جو ہے بھارت کی عدالت کی جانب سے کلین چٹ ملنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سخت رد عمل آیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ جو ہے زاہد حفیظ، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس فیصلے کو مسترد کرتا ہے، اور وہ افراد جو اس تمام معاملے میں ملوث تھے اور جن کی وجہ سے فسادات ہوئے اور ہزاروں افراد اپنی جانوں سے گئے، ان کو اس انداز میں جو ہے وہ کلین چٹ دینا کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ شروع سے ہی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، تاہم مودی سرکار جب سے اقتدار میں آئی ہے تو اقلیتوں پر ظلم اور بربریت بڑھ گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اس کی شدید مذمت کرتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس فیصلے کی بجائے حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے۔ بہت شکریہ اون شیرازی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف درخواست میں سیکرٹری خارجہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل نے درخواست میں موقف پیش کیا کہ مفاد عامہ اور نیشنل کاز کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صدر پاکستان نے پاکستانی شہریوں خصوصی طور پر اقلیتوں کے لیے آواز اٹھانا بہت اچھا ہے، اقلیتوں کو خیال رکھنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے سیکرٹری خارجہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستانی ہندوؤں کے لواحقین انصاف مانگ رہے ہیں، بھارت کو حساب دینا ہوگا۔ سربراہ ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جلد تمام سفارتکاروں کا ایک اجلاس بلا رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس معاملے کو اپنا فرض سمجھا، انصاف کے حصول کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ جسٹس کیا جائے۔ میں آج بھی میڈیا کی توسط سے میں بھارت کی حکومت نریندر مودی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ وحشیت بند کریں۔ یہ کسی مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہر مذہب انکلوڈنگ ہندوازم پیس سکھاتا ہے، انٹرفیس سکھاتا ہے، ہارمنی سکھاتا ہے، گڈ ہیومن بینگ سکھاتا ہے۔ آپ آج بھی ان 11 لوگوں کے خون کے حوالے سے جو آپ کی ایجنسیاں، جو آپ کے لوگ انوالو ہیں، ان کو بے نقاب کر کے ان کو سزا دیں اور ہماری ایمبیسی کو ایکسیس دیں، ورنہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا رسے گا، کیونکہ اس کیس کو جس طریقے سے میں فالو کر رہا ہوں اور جس نیت کے ساتھ آگے بڑھا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اس کو دھچکا لگے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اور اسلامی نظریاتی کے کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار بلوچ، بتائیے گا ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی بالکل، اعتزاز اس وقت جو یہاں پر دورے پر ہیں افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ، ان کا آج یہ تیسرا دن اور آخری روز ہے آج ان کے اس دورے کا، اور اس وقت جو ہے ان کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد سے ہو رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد کی سربراہی جو ہے وہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ممبران میں جو ہے
वो मेंबर इस्लामी निज़राती कौंसल अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, अलामा आरिफ हुसैन वैदी और दीगर जो मेंबरान हैं वो इस मुलाकात में जो है वो मौजूद हैं। कुछ देर कबल ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई है, अभी ये मुलाकात जारी है। मुलाकात में जो है जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की जा रही है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बिरादराना ताल्लुकात हैं उन पर भी बातचीत की जा रही है। और इस मौके पर जो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं उन्होंने पाकिस्तान के खासकर किरदार को जो है वो सराहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन के हवाले से एक अहम किरदार अदा किया। उसके साथ साथ जो अफगान मुहाजिरीन को एक बड़ी तादाद जो इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद है उनको पनाह दी, इस पर भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने जो है इस वफद का और पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ क्योंकि इस्लामी निज़राती कौंसल जो है इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से जो मसाइल होते हैं, जो मामलात होते हैं उन पर बातचीत भी करती है और जो कानून साजी होती है उसमें भी अपना आउटपुट देती है। तो इस हवाले से भी कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है अमन के हवाले से है या ऑल ओवर जो इस वक्त दुनिया में इस्लाम के हवाले से बातचीत हो रही है, इस्लामोफोबिया की सूरत हाल है, तो ये तमाम जो मामलात हैं इस मुलाकात में डिस्कस किए जा रहे हैं। इस्लामी निज़ाती कौंसल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज जो है वो इस वफद में शरीक है और इस वक्त इस्लामी निज़ाती कौंसल के दीगर मेंबरान भी शरीक हैं और ये मुलाकात अभी जारी है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर जो इस वक्त अफगानिस्तान में अमन के हवाले से है इस पर बातचीत की जा रही है। और डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस मौके पर बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 12वीं नेशनल बैंक रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप के इफ्तिताह हो गया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद अशरफ का कहना है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए खेलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक जावेद अशरफ का कहना था कि जिस तरह से स्नूकर फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में स्नूकर खेलकर तरक्की के लिए काम कर रही है ये काबिल तहसीन है। इस मौके पर शोबे स्पोर्ट्स के सरबराह अरशद हुसैन ने कहा कि खेल जहनी और जिस्मानी तरबियत करने में एक मौसर किरदार अदा करता है और हमें चाहिए कि खेलों की तरक्की के लिए काम करते रहें। कबल अज़ीं जावेद अशरफ ने ब्रेक लगाकर 12वीं नेशनल बैंक रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। कौमी नेशनल क्रिकेट कप से कबल बदनज़मी का आला मिसाल सामने आ गई। कौमी सिलेक्टर्स ने कई नामवर क्रिकेटर्स को यकसर फरामोश कर दिया। दिलबर्दाश्ता क्रिकेटर्स ने बैरून मुमालिक जाने का ऐलान कर दिया। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान जूनियर ने सिडनी के वेस्टर्न सबर्ब क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। वो नेशनल T20 कप में सदर्न पंजाब की फर्स्ट 11 में शामिल न होने पर अफसरदा थे। वेस्टर्न सबर्ब क्रिकेट क्लब ने सोशल मीडिया पर इरफान की शमूलियत की खबर देते हुए लिखा कि इरफान ने क्लब के साथ लॉन्ग टर्म मुआहदा करते हुए सिडनी को अपना नया घर बना लिया है। मोहम्मद इरफान जूनियर का कहना था कि मेरी फर्स्ट 11 में जगह बनती थी, सिलेक्टर्स ने मनमानी करके अपने लड़कों को शामिल किया। मैंने PSL में भी परफॉर्मेंस दी, गुज़िश्ता सीजन में भी मेरी परफॉर्मेंस शानदार रही, लेकिन मुझे सेकंड 11 में डाल दिया गया। लाहौर में दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौम की बेटों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। लाहौर की निजी अकेडमी में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों में हिस्सा लेने वाली खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली खवातीन एथलीट्स को उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान पहुंचे तो उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब के आखिर में मुल्क को कौम का नाम रोशन करने वाली खवातीन खिलाड़ियों में सूबाई वजीर इत्तलात ने शील्ड्स तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई भी की। कैमरामैन मुबशर रज़ाक के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। NCOC ने कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर करार दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कराची में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में 747 केसेस में 365 केसेस सिर्फ कराची में हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। कोरोना पर मुतासरीन तक रसाई हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर है, जबकि सिंध हेल्थ सेक्रेटरी का कहना था कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे।
कोरोना केसेस में बतदरीज कमी के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बंद प्राइमरी स्कूल्स आज से खोल दिए गए। तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजामात किए गए हैं। मूजी वबा की पाकिस्तान में आखिरी हिचकियां, तीसरे मरले में तमाम प्राइमरी स्कूल खुल गए। बहुत होगी छुट्टियां, अब है मिलकर पढ़ना। चलो बच्चों स्कूल को चलें। पहले और दूसरे फेज में तालीमी इदारों और तलबा और तलबात की जानब से भरपूर तावन के बाद कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आई, जिसके बाद अब 6 माह बाद प्राइमरी स्कूलों को भी लगे ताले खुल गए। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा मास्क पहने स्कूल पहुँच गए। पुराने दोस्तों से मिले, गप भी लगाई और टीचर्स को तंग भी किया। कहते हैं अब दिल लगा कर पढ़ेंगे। हमारे स्कूल 7 महीने बाद खुले, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे स्कूल खुल गए। मेरा नाम इमशाल है। हम 6 माह बाद स्कूल आए। मुझे दोस्तों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया। हम मास्क पहन के रखेंगे और सैनिटाइजर से हम बाबा हाथ में लगाते जाएंगे। हम 6 माह के बाद स्कूल आए हैं। हम बहुत खुश हैं और हम अपने दोस्तों के साथ मिले। उस्ताजा कहते हैं बहुत तालीमी नुकसान हो चुका, अब बच्चों को SOPs पर अमल भी करवाएंगे और जाओ फिशानी से पढ़ाएंगे भी। जी, मैं बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि हुकूमत ने जो कदम उठाया है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उनको ये चाहिए कि हमारा साथ दें, हुकूमत का साथ दें, बच्चों को सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह पहना के स्कूल भेजें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसेस रखें। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें यही है कि सारे मिलजुल कर करेंगे तो बच्चों के तालीमी निज़ाम में ज़्यादा अहम किरदार अदा होगा। तीसरे मरले में इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चों को SOPs पर अमल करवाना इंतहाई मुश्किल होगा। तीसरे मरले में आज से प्राइमरी क्लासेस का भी आगाज हो चुका है। अब ये वालिदैन और उस्तादा की जिम्मेदारी है कि इन शरारती बच्चों से SOPs पर अमल दरामद करवाएं। कैमरामैन अरशद सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में इलेक्ट्रिक की हरदर्मी जारी है। 10 से 12 घंटे की लोडशेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। गर्मी के सताए शहरियों पर के इलेक्ट्रिक वालों ने भी तरस न खाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, सरजानी, औरंगी, जमशेद रोड, लाइन्स एरिया और लियाकताबाद के इलाके शामिल हैं, जबकि रिजविया सोसाइटी, नाजमाबाद, गुलबहार और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरी कहते हैं कि 1 घंटा बिजली होती है और 4 घंटे गायब हो जाती है। बिजली ना होने की वजह से पानी के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात का सामना होता है। पानी नहीं होता है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है और दूसरे मसाइल हो जाते हैं। बिजली यहाँ तो है ही नहीं। स्कूल में बिजली का तार तोड़ दिया इन्होंने। कोई बिजली का नहीं है, कोई पंखे नहीं चल रहे, कोई बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। अगर सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।